रोज ये सोचता हूं कि शायद कोई ऐसा मसीहा पैदा हो जाए, कोई ऐसा आज शख्स पैदा हो जाए जो झूठ को झूठ कहने की और जालिम को जालिम कहने की हिम्मत रखता हो. Allah Tero Naam cannot be understood without his struggle against British colonialism. Similarly, the struggle against Hindutva cannot be fought without understanding whose economic interests the Sangh is serving. The last thing I will say is that the road ahead is difficult. I agree with it, but it will be made easier if the Indian diaspora is willing to actively participate to change things. What that means is that we must challenge the rise of supremacist ideas in the diaspora as well. The Indian flag was among the racist and violent crowd in DC on January 6th. This is as much a reality as the celebration of Golwalkar's birth anniversary by the Indian government yesterday. So please speak out. You are in a much better, much safer position than the 25-year-old Nadeep Kaur and the 83-year-old Stan Swamy. And if you lose a few friends on the way, they don't like you anymore, that's okay. We need to keep our conscience alive. With those remarks, it is my great honor to introduce Professor Vipin Tripathi and Shri Muhammad Adib. Shri Muhammad Adib has been a leading voice of secular and Gandhian values in Indian polity. Born in Barabanki, he studied in Lucknow. In mid-60s, he joined AMU and was president of Student Union for 2 terms. He was helpful in creating a progressive and liberal image of AMU. As an independent member of the Rajya Sabha for 6 years, he participated in all crucial debates with great depth and articulation. Driven by the urge for an alternative media house, Shri Adib has created Savera Network Trust that is running a social media channel, Freedom Express. Dr. Vipin Tripathi is a plasma physicist from the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, where he also taught. Dr. Tripathi began his work against religious sectarianism when he was teaching physics at the University of Maryland. He founded the Sadbhav Mission, and as the name suggests, it works to promote communal harmony. He is a true hero for me and for thousands of others. He has aptly been called the pamphlet man because he writes pamphlets on controversial topics such as the Babri Mosque demolition and Article 370 and distributes them in cities and towns. His pamphlets give facts and appeal for dialogue. Sometimes he is met with antagonism, but he faces it with logic and facts. He's constantly reaching out to people. Even just now, he was in Mumbai, Kolkata, and Azamgarh for 9 days, meeting with peace activists and common people. He also helps to run a few schools. I hope that all of you will be inspired by Shri Muhammad Adib ji and Professor Vipin Tripathi ji to be active in protecting India from fascism. Thank you. So kind of you. یہ میرے لیے بہت خوشی کا موقع ہے کہ آج مجھے آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے کا موقع ہے اور ادیب صاحب کے ساتھ یہ فلور شیئر کرنے کا موقع ہے. میں ہو سکتا ہے کہ بیچ بیچ میں کچھ انگریزی میں بھی بولوں، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ہندی میں ہی بات رکھوں. میں 3 ٹرمز آپ نے جو استعمال کی، انڈین ڈائیورسٹی, سیکولرزم اینڈ ڈیموکریسی, I would like to make some clarifications because I visualize them slightly differently. Diversity, to me or to everybody, probably it implies that people of different faiths, different cultures, different languages, different thought processes live in peace with each other. They tolerate each other, not only tolerate, rather they allow everybody to live freely the way they want to live. But over the years, in Indian context, I consider that Indian society has been a divided house for 3,000 years. Caste has been a very dividing factor for us. اور انگریزوں کے آنے کے بعد religion has become a dividing factor. لیکن there is a distinction between the two.
हिंदुस्तान का समाज जब जातियों में बटा था, उस वक्त हिंदुस्तान के समाज में एक तरीके की हार्मोनी भी थी। ऑपरेसिव था, लोअर कास्ट के लिए उनके पास रिसोर्सेज की मालकियत नहीं थी, उनके पास तालीम के मौके नहीं थे, इकोनॉमिकली दे वर एक्सप्लॉयटेड, सोशली सेग्रीगेटेड, लेकिन एक इस सेंस में हार्मोनी थी कि नाई है तो वो सबके बाल काटेगा, मोची है तो सबके लिए जूते बनाएगा, और ब्राह्मण मोची पे डिपेंडेंट था, नाई मोची पे डिपेंडेंट था, मोची नाई पे डिपेंडेंट था। कॉन्सिक्वेंटली इट वाज एग्रेरियन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप, एंड इन दैट सोसाइटी एक खास बात थी कि हिंदुस्तान में रिलीजन के एतबार से राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट के हिंदुस्तान के बाहर जीसस क्राइस्ट जब क्रूसिफिकेशन हुआ तो वन ऑफ हिज डिसाइपल्स सेंट थॉमस केम टू केरला, एंड केरला में भी उनकी कब्र है, और तब से सो इतनी ओपननेस थी इन सोसाइटी। इट वाज कास्ट हायरार्की वाज वेरी रिजिड हियर, डिस्पाइट दैट रिलीजन के पर्सपेक्टिव से हिंदुस्तानी सोसाइटी वाज ओपन, और उन्होंने क्रिश्चियनिटी उसी वक्त आ गई। सिमिलरली पैगंबर मोहम्मद के जमाने में इस्लाम केम टू इंडिया, एंड इट केम टू इंडिया थ्रू ट्रेडर्स, और वहां का एक राजा था चेरमन पेरुमल केरला का, और उसको उनकी बातें पसंद आई तो वो मुझसे मिलने भी चले गए। अब ये पता नहीं है कि वो पैगंबर मोहम्मद साहब से मिले कि उनके किसी खलीफा से मिले, लेकिन सबसे पुरानी मॉस्क लगभग 1400 साल पुरानी केरला में ही है। तो इतनी ओपननेस थी। ये बात फजूल की है कि केरला हिंदुस्तान में इन्वेडर्स के जरिए इस्लाम आया, और प्रोपेगेंडा करने वाले जिनको जहर भरना है, जिनके रगों में जहर भरा हुआ है, वो तो ऐसी बातें करेंगे आई थिंक, बट ये बड़ी दीगर बात है। एक बात और मैं डाइवर्सिटी के कंटेक्स्ट में रखना चाहता हूं कि 20th सेंचुरी में जितना डिवीजन रिलीजन कास्ट के आधार पे हुआ, उससे बड़ा डिवीजन क्लास ने किया है, और क्लास एंटोगनिज्म बल्कि डोमिनेंट फैक्टर रहा, और उसके साथ साथ एक चीज निकल के आई, क्योंकि कास्ट ऑफ ये क्लास स्ट्रगल खड़ा हुआ, वर्किंग क्लासेस की हालत खराब रही, जो रिसोर्सेज कंट्रोल था उन क्लासेस की हालत मजबूत थी, तो फिर वो इक्वलिटी का मसला आया, एक्सप्लॉयटेशन खत्म करने का मसला आया, सोशलिज्म कम्युनिज्म चालू हुए, और जब कोल्ड वार का पूरा पीरियड गुजरा, उस पूरे पीरियड में आइडियोलॉजी वाज द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर पॉलिटी, और उसी में फिर मसला एक्चुअली एक कंट्री शुड बी रिकॉग्नाइज वेदर इट अलाउज प्लूरलिज्म और नॉट, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि उस मुल्क में डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के रहने की गुंजाइश या जगह है कि नहीं है। अमेरिका में फॉर इंस्टेंस मैकार्थर के जमाने में एक जमाना आया जबकि वहां पे अगर आपका सोशलिस्ट विचारधारा से हल्का सा भी सोच है या हल्का सा भी कम्युनिस्ट विचारधारा का सोच है, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है वहां पे अपनी बात को कह पाना। हालांकि आई नो सम प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटीज with very liberal and leftist thinking that they can survive there in academic circles. So अमेरिका की यूनिवर्सिटी का academic circle is more liberal than American political system. बल्कि हालत ये है कि वहां पे जब किसी मुल्क पे हमला हो जाए, अमेरिका का हमला कर दे और उसकी आप मुखालफत करना चाहो उसी वक्त, जैसे ये वियतनाम वार था। अब वियतनाम वार की मुखालफत बाद में तो हुई 60s में, लेट 60s में, लेकिन शुरू में इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक ए वर्ड अगेंस्ट दैट। इस तरीके का माहौल था वहां पे। तो पॉलिटिकल थॉट के लिए डाइवर्सिटी भी जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हिंदुस्तान में आज की जो सूरत है, इफ देयर इज ए हेट्रेड इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, इन पर्टिकुलर रिलीजन, तो हिंदुस्तान में उतनी ही हेट्रेड आज आइडियोलॉजी को लेके है। अगर आप सेक्टेरियन आइडियोलॉजी के हैं तो आपके लिए सब रास्ते खुले हैं, नौकरियों में तरक्की के रास्ते खुले हैं, नौकरियों में अपॉइंटमेंट के रास्ते खुले हैं, आपके लिए फेवरेबल रहेगी, कचहरी में आपके लिए फेवर मिलेगा, मिल सकता है। लेकिन अगर आप उस विचारधारा से हटके हैं, तो इवन गांधी विचारधारा के हो, समाजवादी विचारधारा के हो, साम्यवादी विचारधारा के हो,
then you are in trouble. اور ہندوستان میں بھی ہے کئی اور دوسرے ملکوں میں بھی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ in last 100 years ہندوستان نے 2 phases دیکھے. پہلا فیز تو وہ تھا when British rule was very strong in the country, اور اسی پیریڈ میں اس کے خلاف ماس موومنٹ کھڑا ہوا گاندھی کی رہنمائی میں اور تمام لوگوں کی رہنمائی میں. تو وہ جو ماس موومنٹ کا دور چلا تو اسی کے بعد کچھ دنوں کے بعد ہندوستان میں ہندوستان کا جو ایلیٹ تھا which was subservient to the interest of the British, تو ان لوگوں کے لیے ضرورت پڑی کہ بھائی we want to counter this movement because it's not only against the British authority, it's against the authority of Indian landlords also, Indian money lenders also, Indian ruling class also. تو وہ ان کو لگا کہ this is just targeted against the entire ruling class, foreigner as well as national. تو انہوں کو لگا کہ بھائی some strategy has to be worked out, and communalism or sectarianism emerged as a weapon of this elite. اور اس کو پوری مدد ملی برٹش امپیریلزم سے یا برٹش حکومت سے. اور ہندوستان خیر چلو 1947 میں آزاد ہوا, 2 ملک بن گئے, اینڈ فار 20 years we were at peace. ہندوستان کا راجنیتی پر سیکٹرنزم واز ناٹ ڈومیننٹ. لیکن میں مانتا ہوں کہ اس کے بعد 1969 میں جب دنگے ہوئے احمد آباد میں, بھیونڈی میں میس وائلنس ہوا, اس وقت ہندوستان کی راجنیتی میں سیکٹرنزم اسٹارٹڈ emerged as a very significant political force, اور وہ dominant political force بن گیا 1989 میں when Temple movement started. اس کے بعد ایک بہت خطر غضب کی چیز سامنے آئی اور وہ آیا لبرلائزیشن کا دور. لبرلائزیشن کے دور نے کہنے کو تو ٹارگٹ رکھا کہ ہندوستان میں پولیٹی میں سیکٹرنزم از دا ڈومیننٹ فورس, لیکن میں مانتا ہوں کہ کلاس انٹرسٹ واز دا موسٹ ڈومیننٹ فورس. کہ ہندوستان کا جو ایلیٹ تھا اس کے لیے جب موقع ملا اپنی منافع بڑھانے کا, باہر کی کمپنیوں کو انوائٹ کر کے ان کی دلالی کر کے اپنا کاروبار بڑھانے کا, اور جب میڈیا پہ کنٹرول حاصل کیا اس نے ان 90s onwards, then sectarianism became their tool, but the major interest was to control all areas of economic endeavor, educational endeavor, religious endeavor in the country. حالت یہ ہوئی ہے کہ since 1990 ہندوستان کے یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے جس کے لیے سیکٹرنزم اس کی رگوں میں ہے, لیکن اس نے ہی ڈومیننٹ اس کی امپیریسٹک ٹینڈنسی ہے کہ دبا کے رکھو, کچل کے رکھو, لوٹ کے رکھو. اینڈ آئی تھنک دس از اے ویری ٹیریبل سچویشن that we are facing for last 3 decades. اب حالت یہ ہوئی کہ ان last 6 years ہمارے اس دیش میں ایسی حکومت آ گئی, کہنے کو ان کی بھی ایک آئیڈیالوجی ہے, کمیونل آئیڈیالوجی, سیکٹرین آئیڈیالوجی, نیشنلسٹ آئیڈیالوجی کہتے ہیں اس کو, وہ ریلیجس آئیڈیالوجی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, نام تو دینے میں اپنی مرضی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے, بھگوان نے سب کو زبان دی ہے, کچھ بھی اپنے کو کہہ لو, قتل کرو کسی کو, اپنے آپ کو اہنسک کہہ لو, وہ تو آپ کہہ ہی سکتے ہو. مطلب دیٹ از دی کائنڈ آف فریڈم گیون ٹو ہیومن بینگس. لیکن اگر آپ کریکٹر دیکھیں اس پورے رولنگ ریجیم کا, وہ رولنگ ریجیم اس کی آئیڈیالوجی جو انہوں نے پروپاؤنڈ کی تھی 1925 میں, تبھی سے اسی آئیڈیالوجی کو جیتا چلے آئے ہیں. اب وہ حکومت اس میں ہمیں دماغ میں رکھنے کی ہے, اور وہ گاندھی کے پرسپیکٹو, گاندھی نے اس میں کلیئرٹی لائے تھے گاندھی جب RSS نہیں بنی تھی. لیکن RSS ہی اکیلا سیکٹرین فورس نہیں ہے, ان کے الگ الگ ویریشنس ہیں, مسلمانوں میں بھی ہیں, ہندوؤں میں بھی, سب میں. میں گاندھی نے ایک بات رکھی تھی when British were ruling India and he carried the mass movement, he led the mass movement for freedom. Gandhi said that I am not against British, but I am against the imperialistic character of the state. The state is a public institution. It runs on the sweat and blood of the masses. اور اس کی ذمہ داریاں ہیں 3. It must be democratic. ڈیموکریٹک کے معنی کمزور سے کمزور طبقے کی بھی اس میں آواز ہو, ایڈیکویٹ ریپرزنٹیشن ہو, اور اس کے مسئلوں کی بھی آواز ہو. دوسری بات, اٹ مسٹ بی اکاؤنٹیبل. اینڈ تھرڈ,
इट मस्ट बी प्रो पीपल. प्रो पीपल मीन्स इसकी पॉलिसीज जनता के हक में, इकोनॉमिक पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसीज, हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज एंड सो ऑन, प्रो पीपल होनी चाहिए. ये बात गांधी जी ने तब रखी थी. और इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ी मुसीबत यही खड़ी हो गई है कि वी आर कन्फ्रंटिंग ए स्टेट जिसके पास मिलिट्री पावर है, जिसके पास हिंदुस्तान का जितना भी इलीट व्यापारी तबका है, कॉर्पोरेट इलीट, उसकी का सपोर्ट, उसकी ताकत है, उनको फंड वही करते हैं. और सबसे मुसीबत की जड़ यह है कि पूरा मीडिया इनके साथ है. बिसाइड्स ऑल दिस दे हैव ए लार्ज कैडर ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कैडर विच जो वायलेंट है. लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि एक फायदा हुआ है. फायदा यह हुआ है, और जिसकी तरफ में जीसस क्राइस्ट से लेके पैगंबर मोहम्मद से लेके गांधी तक इस बात के लिए जोर देते रहे, वो जोर देने का वक्त हमें भी आ गया है. क्योंकि आप लोगों ने ये मशवरा दिया था कि रोड अहेड, इस पे जोर दिया जाए कि हमारे सामने रास्ता क्या है. तो मैं समझता हूं कि जब से ये हुकूमत आई है हमारे सामने रास्ता भी खुल गया है. रास्ता ये, मैं मानता हूं कि जितने बड़े जुल्म हिंदुस्तान में या दुनिया में होते हैं वो हुकूमत या गवर्नमेंट के कानूनों के जरिए होते हैं या उनकी मदद से होते हैं. अभी सरकार ने खुद ही, जब से उनकी सेकंड टर्म चालू हुई है, ऐसे कानून खड़े कर दिए जो ब्लेटेंटली एंटी पीपुल हैं. मतलब ये आप सोच नहीं सकते कि एक राज्य की जनता के प्रति आप कानून बनाओ और उससे ना पूछो, और आप पूरे हिंदुस्तान में एक राज्य की जनता को ह्यूमिलिएट करके और तालियां पिटवाओ, उनमें अपनी तारीफ करवाओ, वार यूफोरिया जैसी सूरत पैदा कर दो. कश्मीर के सवाल पे ऐसा हुआ. उसी तरीके से पिछले बरस हमारे हिंदुस्तान के अवाम पर, जो हजारों बरस से इसी मुल्क का बाशिंदा है, नो स्टेट हैज राइट टू क्वेश्चन द सिटीजंस ऑफ ए इंडिविजुअल. हाँ, चोर मकार कोई मिल जाए, आप उससे पूछ पाछ लो, तू कहाँ का है, क्या किया तूने. लेकिन आम शहरी से, मेहनत की जिंदगी बसर करने वाले आदमी से नोबडी कैन क्वेश्चन कि तू यहाँ का नागरिक है कि नहीं है. इन्होंने कानून बना दिया. कहने को तो कानून बाहर से आए हुए जो इलीगल माइग्रेंट्स है उनके लिए है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये अफगानिस्तान से जो लोग इलीगली आ गए उनके हम दो खांचे करेंगे, दो कैटेगरी बनाएंगे. वन इज मुस्लिम कैटेगरी एंड सेकंड इज नॉन मुस्लिम कैटेगरी. जो मुस्लिम कैटेगरी के हैं उनके लिए तो हम कहेंगे कि तू तो इलीगल माइग्रेंट है, कॉन्सिक्वेंटली यू इन्फिल्ट्रेटर, यू गो बैक और यू विल बी अरेस्टेड एंड गो टू जेल. And those who are in the second category, they will be treated as refugees, and after 6 years they will be given citizenship of the country. ये दो वैसे अपने आप में ही गलत है, because 90% people coming from these countries to India illegally are workers. और वर्किंग क्लास का मजदूर आदमी काम की तलाश में आता है. You cannot, there is no distinction between a worker of whether his religion is Hindu religion or Islam religion or Christianity or whatever. तो ये, लेकिन ये गलत चीज निकाल रखी है. दूसरी बात ये कि इसके साथ में ही, इसके कुछ दिन पहले ही एनआरसी आसाम की एक रिपोर्ट आ चुकी थी. उस रिपोर्ट में नियरली 19 lakh people were out of NRC, the National Register for Citizens, and out of them about 5 lakhs were Muslims and 14 lakhs were Hindus. तो अब आप उनसे में कहोगे कि ये लोग जो बाहर रह गए, इनमें जो मुसलमान हैं, इन 5 लाख को तो हम कहेंगे कि तू तो आई विल सेंड यू टू जेल, एंड बाकी जो 14 लाख है उनके लिए वील प्रोवाइड ए सेफ पैसेज, या अभी आप हम रिफ्यूजी कहेंगे आपको, बाद में आपके लिए हम सिटीजनशिप दे देंगे. एंड देन यू हैव डिक्लेयर्ड सो मेनी टाइम्स कि हम एनआरसी पूरे मुल्क में लागू करेंगे. Then it's a serious question that you are questioning the integrity and citizenship of every individual in this country. तो आप धर्म बताओ अपना, and depending on religion, we will say whether you are a infiltrator or you will be questioned differently and you will be categorized differently. It is a terrible thing. It can never, दुनिया के किसी इंसाफ का पैमाने पे आप आंक लो इस बात को
कहीं ठीक ठहरती नहीं, लेकिन हुकूमत ने ऐसा किया है। तो करना ये है, इस तरीके से साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने इसी किस्म के कानून वहां की सरकार बनाती थी हिंदुस्तानियों के खिलाफ। ये जो लोग यहाँ पे गिरमिट लेके या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे आते थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, दे हैव टू गो बैक और दे हैव टू पे एक्स्ट्रा टैक्स। तो गांधी जी ने उसी के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। मैं कहता हूं कि जिस तरीके से वहां पे सिर्फ 3% हिंदुस्तानी था, तो गांधी जी ने यह कोशिश नहीं की कि भाई मैं 97% बाकी लोगों को, उसमें 18% तो गोरे लोग थे और बाकी करीब 70% या 70 कुछ परसेंट वहां के निग्रोस थे। तो गांधी जी ने ये नहीं कि हिंदुस्तानी लोगों को हक दिलाने के लिए मैं बाकी 80% लोगों को भी खुश करूं। उन्होंने कहा अगर उनके हक के लिए मुझे लड़ना है तो वो एक अलग मसला है, मैं उनके उसके लिए लड़ूंगा, लेकिन जिन 3% लोगों के की हक तलफी की जा रही है उनके हक दिलाने के लिए मैं उनकी ताकत से ही लड़ूं। उनमें ताकत भगवान ने दे रखी है, हर इंसान में अल्लाह ताला ने, भगवान ने ये ताकत दे रखी है कि जो जुल्म उसकी कम्युनिटी पर या उसके ऊपर हो, उसके खिलाफ वो बगैर हथियारों के, बगैर दौलत के, बगैर मसल पावर के, बगैर गाली गलौज के, भगवान ने जो अपन को आत्मा दे रखी है, सच्चाई का एहसास करो और दूसरों को सच्चाई सामने रखो। उसके लिए आपको जो कष्ट सहने पड़े, कुछ कत्ल होंगे आपके, कुछ शहीद होंगे, लेकिन उससे आपका रास्ता आप आगे बढ़ोगे। ये गांधी ने हमें सिखाया। तो वो मैं समझता हूं कि जब से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड इनजस्टिस सामने आया है, आई थिंक हम आपस में न लड़ें। जीसस ने सिखाया, मोहम्मद साहब ने सिखाया, गांधी ने सिखाया, आपस में मत लड़ो, फाइट द स्टेट। तो एक तो रास्ता मुझे लगता है कि सीएए के एक सवाल पर ये चीज सामने आ गई, और कश्मीर के सवाल पे भी, कश्मीर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस। इस तरीके से यूपी का आदमी हिंदुस्तानी है, उसी प्रकार कश्मीर का आदमी भी हिंदुस्तानी है। अगर यहाँ के आदमी की हक तलफी इनजस्टिस है तो कश्मीर के आदमी की हक तलफी भी इनजस्टिस है। दे आर पार्ट ऑफ अस। तो किसी भी शख्स पर जुल्म होता है, और फॉर्चुनेटली वहां पे भी मैंने देखा, जब मैं नवंबर में गया था पिछले बरस, तो वहां पे 11 बजे दिन से लेकर शाम के 5 बजे तक लोग दुकानें बंद रखते थे। कई महीनों रखा उन्होंने ये। इस वक्त का तो मुझे नहीं मालूम कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेस्ट दे आर कंटिन्यूइंग, लेकिन ठीक है, लगातार नहीं कर सकता प्रोटेस्ट। गांधी जी ने भी आजादी का आंदोलन, ऐसा नहीं कि लगातार जेल में चलते गए लोग और आंदोलन ही कराते रहे, बीच बीच में मौके भी आते हैं, आपको रुकना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू रिग्रुप योरसेल्फ एंड देन यू हैव टू वेज द सेकंड फेज ऑफ स्ट्रगल। तो उसी प्रकार ये दूसरा मसला इस बार खड़ा हुआ है किसानों का। अब ये चीज बहुत अच्छे सामने आ गई है, हालांकि बहुत दुखद है। 200 किसान मर चुके हैं, करीब 4 महीने उनको स्ट्रगल करते हो चुके हैं, 3 महीने तो दिल्ली में होने वाले हैं, लेकिन किसानों ने ना तो कोई वायलेंस किया है, और बल्कि एक कोर इशू को मोटी तौर पर, एनीबडी वुड अंडरस्टैंड दिस, एक मोटा आंकड़ा है कि हमारे हिंदुस्तान का जो जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम है देश की, किसानों की पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज का 1/4 है। तो ऑब्वियसली दे आर एट ए रिसीविंग एंड। व्हेन दे गो टू सेल देयर प्रोड्यूस इन द मार्केट, दे हैव नो वॉइस। द मार्केट फोर्सेस डिसाइड द प्राइस, और प्राइस फ्लक्चुएशन से जो एडवांटेज होता है वो सारा का सारा ट्रेडिंग क्लास को होता है। एंड द न्यू गवर्नमेंट लॉज टोटली इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स। ट्रेडर्स के लिए क्या सहूलियत होगी, उनको मुनाफा कैसे बढ़ेगा ताकि वो और ज्यादा इन्वेस्ट करें खेती में, इसी की बात रखी है उन्होंने। देयर मे बी सम गुड पॉइंट्स इन देयर व्हिच आई एम अनेबल टू सी, बट मे बी सम ऑफ देम कैन मे बी एक्सप्लेन बेटर। लेकिन ओवरऑल अगर अपन पिक्चर को देखो तो मार्केट फोर्सेस के सामने किसान बेजुबान रहता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री द फार्मर्स हैव गिवन वॉइस टू देयर पेन, टू देयर एक्सप्लॉयटेशन, टू देयर वॉइसलेसनेस। पहली बार खड़ा हुआ है किसान। मैं मानता हूं कि ये जो 2 आंदोलन खड़े हुए, एंटी सीएए प्रोटेस्ट पिछले साल और ये जो दूसरा आंदोलन इस बार का, यही हिंदुस्तान की असली आवाज है। मुझे एक बात का जरूर कहना है कि फिरका वारियत का एक इंटरनेशनल डायमेंशन है, उसके बारे में थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। ड्यूरिंग द कोल्ड वार पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1945 टू 1990, ये 45 साल का जो दुनिया पे वक्त गुजरा, उसमें सारी दुनिया के
जितने भी कम्युनल फोर्सेस हैं, whether Buddhist, Hinduist, Islamist, whatever shade, they were together. They were subservient to the interest of the कैपिटलिस्ट ब्लॉक, सारे के सारे एक साथ थे। और बहाना क्या होता था, यही हिंदुस्तान के में फिरका वारियत को खड़ा किया अंग्रेजी राज ने। इसके पहले रिलीजन के नाम पे फिरका वारियत थी नहीं। तो लेकिन इन्होंने तमाशा यह किया कि जब कोल्ड वार का पीरियड आया तो पहले जिस तरीके से पैट्रोनाइज करता था सेक्टेरियन फोर्सेस को हमारे यहाँ का कॉलोनियल रिजीम, ब्रिटिश रिजीम, आफ्टर इंडिपेंडेंस हिंदुस्तान का जो कैपिटलिस्ट क्लास है, कॉर्पोरेट क्लास है, उसने पैट्रोनाइज किया कम्युनल फोर्सेस को। तो मारमंडी इज द फाउंटेन हेड ऑफ सेक्टेरियनिज्म इन द कंट्री। गवर्नमेंट तो अब बनी है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको मदद मिल जाती है, सिपाहियों से भी मदद मिल जाती है, मिलिट्री से भी कभी कभी मिल जाती है, वो एक अलग मसला है। लेकिन प्राइमरीली द इंडियन कॉर्पोरेट इलीट, इकोनॉमिक इलीट and the officer class also, they are sectarian or they are the supporters of sectarianism. तो मैं हुआ ये कि अमेरिका जैसे कंट्री ने जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को टारगेट किया तो उन्होंने बहाना बनाया कि उस मुल्क में वहां की, जैसे सद्दाम हुसैन को निशाना बना लिया कि सद्दाम हुसैन जो है वो शिया लोगों के खिलाफ गलत है। अरे भाई ठीक है, he was maybe he had Shias had grievances against him, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये बहाना बना के आप उस मुल्क को गुलाम नहीं बना सकते, उसको हमला नहीं कर सकते। So I think if there is an internal trouble in any country, whether communal problem और जैसे आजकल बर्मा में चल रहा है या कहीं और चल रहा है, I think any out power, especially a super power, should not intervene, should not make it a बहाना कि इसके बहाने हम जाके उस मुल्क को गुलाम बना ले। ये चीज ठीक नहीं है। I think all developing countries or poor countries have to stand on their own strength. They have to fight oppression on their own strength. वैसे भी दुनिया में जितने भी, चाहे वो आप बोस्निया का उदाहरण ले लो, रुवांडा का ले लो, या किसी मुल्क का, कांगो का ले लो, जिन जिन मुल्कों में सेक्टेरियन या कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, उन मुल्कों के लोकल लोगों ने उनके ऊपर काबू हासिल किया है और बाहर के मिलकर हुए तो बात अलग है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा रैप कर ले, टाइम का कंस्ट्रेंट्स रहेगा, आपका टाइम जो है काफी निकल गया है। अच्छा ठीक है, मैं अपनी बात लगभग कह ही चुका हूं, जस्ट आई विल टेक ए मिनट मोर। माय पॉइंट इज दैट व्हेन वी आर फाइटिंग the unjust laws of the state, we are very conscious, and all these farmers, the anti-CA protesters, they were conscious that we are not going to waste the struggle on the support or strength of outside forces. और आखिर में एक बात मुझे अपने जो NRIs साथी विदेशों में रह रहे हैं उनसे कहनी है कि आप लोग हिंदुस्तान के अवाम को खांचों में बांट के मत देखो। यहाँ का आदमी हिंदू मुसलमान नहीं है, ये तो हमारी जिस्म पे लगे लेबल है। एवरी इंडिविजुअल बॉर्न इन दिस कंट्री इज ए कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। सिर्फ इतने मामले में इस्लाम है कि किसी ने कुरान पढ़ के इंसानियत सीखी, किसी ने रामायण पढ़ के सीखी, किसी ने गीता पढ़ के सीखी, किसी ने बाइबल पढ़ के सीखी, लेकिन ये तो सिर्फ इंसान को इंसान बनाने के जरिए है। बेसिक बीइंग इज ए फुल एंटिटी, और अगर हम इसको एहसास करेंगे, then I think we will build India a better country. Thank you. Thank you, sir. जी अदीब साहब, अब आप प्लीज। जी मुझे बोलना है? जी जी जी, वेलकम। Thank you so much. You have given me opportunity to discuss something. I'm neither a scholar nor competent enough to say a few words on this line, but since my childhood, I have an idea of India on which we feel the idea of India very much depend on the three
subjects you have mentioned now. आज रियलिटी डिफरेंट है. मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, जैसा कि त्रिपाठी साहब ने कहा, कि जिस माहौल में इस वक्त हिंदुस्तान आ गया है, खोल के बैठना चाहिए कि ये हो क्या रहा है. आपने कहा कि प्लुरलिज्म या डाइवर्सिटी, मेरी अपनी समझ ये है कि दुनिया के बहुत कम मुल्क ऐसे हैं जो इमिग्रेंट कंट्री थे, और हिंदुस्तान की ये जो हिस्सा है ये आज का पुराना इमिग्रेंट नहीं है, बल्कि अगर आप गौर करें तो नूह अलैहिस्सलाम के वक्त का जो एक वाकया है कि समंदर आया और दुनिया बटी और माइग्रेशन हुआ, ये जमीन उस वक्त से माइग्रेंट एक्सेप्ट करती है. इसका इजहार हमारे हिंदू मैथोलॉजी में भी है कि समंदर को मथा गया और विष निकला और दुनिया भागी. और आपको अंदाजा है कि ये वो दौर है, 800 साल पहले वेदांत भी इसी जमाने में लिखे गए, और ये सब बराबर हिंदुस्तान में आते गए. और जैसे मौलाना आजाद ने कहा था कि सदियों से यहाँ मुख्तलिफ कौम के डेरे आए और उसकी जमीन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया. और ये सिलसिला जो ईरान और तुर्की और सेंट्रल एशिया, यहाँ से जो लोग आए हैं, ये एक दिन तक नहीं आए हैं, मुगल पीरियड तक आए हैं. क्योंकि हुआ ये है कि मैंने एक प्रोफेसर सतीश चंद्रा की एक किताब पढ़ी थी बहुत जमाने पहले. उन्होंने कहा कि ये माइग्रेशन जो है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाता है, क्योंकि इंडिया में प्रॉस्पेरिटी थी, मुगल सल्तनत, इस्लामिक सल्तनत कई सौ साल तक यहाँ थी. तो जैसे ही ये यूएसएसआर टूटा और मुख्तलिफ मुल्क बने, तो मैंने कई साल उन इलाकों में एज ए सयाह घूमा मैं, और मैंने जाके देखा कि वहाँ जो कल्चर था वो हमने अडॉप्ट किया हुआ था, हिंदुस्तान का वो कल्चर बन गया था. उनकी जबान, जो हम उर्दू जबान बोल रहे हैं, रोजगार, मोहब्बत, दुकान, ये सारे अल्फाज वो पुरानी अल्फाज थे जो हमने अडॉप्ट किए. मुझे एक बड़ा दिलचस्प वाकया याद आया कि मैं जो ओश जो इलाका कहलाता है वो फरागा वैली यानी बाबर की बर्थ प्लेस है, तो वहां के गवर्नर ने मुझे खाने पे बुलाया. बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, और मुझसे उन्होंने जब महाभारत के किस्से बयान शुरू किए तो मैं हैरत ज़दा रह गया. और उन्होंने कहा कि भाई ये जो महाभारत है ये तो हमारे गॉड थे, यानी ब्रह्मा और विष्णु हमारे गॉड थे, और हमारी साउथ का जो बादशाह था उससे हमारी लड़ाई हुई थी, यानी रावण से. ये वो कॉन्सेप्ट था जिसपे हिंदुस्तान की जमीन ने सबको अडॉप्ट करके बनाया था. और इसी वजह से अगर आपको अंदाजा हो कि जब 1857 में बहादुर शाह जफर लाल किले के बादशाह थे, लेकिन जब बगावत शुरू हुई तो तात्या टोपे से लेकर और रानी की झांसी तक और मेरठ से लेकर और मुजफ्फरनगर तक हर तरफ का राजा महाराजा उसने कहा कि हम लड़ेंगे. यही हश्र अवध में हुआ. बिरजीश पदर 11 साल का लड़का था, उसको राजा तुलई ने, राजा महमूदाबाद ने, राजा महानगर ने, और ये जितनी स्टेट थे हिंदू और मुसलमान, उन्होंने उसको लीडर बनाया था. ये अलार्मिंग कंडीशन थी ब्रिटिशर्स के लिए कि लाल किला अभी भी यूनाइटिंग फोर्स है. उसके बाद इनकलाबी कैफियत 1923 में हुई, जब गांधी ने चंपारण का किसानों का देखा कि वहां उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और ये कहा कि ये एक ऐसी हुकूमत होगी जो डेमोक्रेटिक होगी, लिबरल होगी और सेकुलर होगी, और हर इंसान को वोट डालने का मौका मिलेगा. नतीजा हुआ कि जो जिम्मेदार थे, जो रऊसा थे, उनको ये एहसास हुआ कि अब वो आवाम जिसको हम जमीन के नीचे बिठाते हैं वो हमारे साथ हुकूमत करेगी. नतीजा हुआ कि आपको मालूम ही है, उसमें एनी बेसेंट और जिना और ये सिद्धार्थ शंकर रे के मामा, ये लोगों ने कहा कि भाई ये तो पागलपन की बात है.
एंड इमीडिएटली सावरकर को जेल से छोड़ा गया और कहा गया कि गांधी की मुखालफत करो। नतीजे के तौर पर सावरकर ने 2 नेशन थ्योरी का नारा दिया और जिन्ना ने 2 साल के बाद उसको सनद दे दी, स्वात कर दिया। ये वो किस्सा है जहां से शुरुआत हुई इस मुल्क में बंटवारे की। मैं समझता हूं कि नेहरू और गांधी का जो तस्वुर था हिंदुस्तान का, उस तस्वुर से उस वक्त से जो लड़ाई शुरू हुई वो अपने इंतहा को आज पहुंच गई है। नेहरू ये बात समझते थे कि दुनिया में हम हिंदुस्तान में जो नई हुकूमत बनाएंगे वो डेमोक्रेटिक होगी, लिबरल होगी और सोशलिस्ट होगी, सबको हिस्सेदारी का हक होगा। इसकी मुखालफत उस वक्त नेहरू के जमाने से शुरू हुई। नेहरू एक विजनरी आदमी थे। वो जानते थे कि यूरोप में एक मजहब है, एक कल्चर है, एक खाना है समवॉट, लेकिन जबान पर मुल्क बट गए, पूरा यूरोप जबान पे बट गया। उनको मालूम था कि हम जिस हिंदुस्तान का तस्वुर कर रहे हैं वहां सैकड़ों जबानें हैं, न जाने कितनी खाने और पीने और इख्तिलाफी हर चीज मुख्तलिफ है। उसको जोड़ने के लिए एक हिंदुस्तान का जो तस्वुर था, उस तस्वुर से लड़ाई होते होते हम यहां तक पहुंच गए। आप देखिए पूरा यूरोप जबान पे बट गया। हम साउथ इंडिया जाते हैं, हमें उनके खाने भी अच्छे नहीं लगते, उनकी जबान भी नहीं जानते। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई चीज किसी चीज से मिलती नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि कुछ दीवाने ऐसे हैं जो आज भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होगा। मुझे कोई ये बताता नहीं है आरएसएस का। मैंने कई मीटिंगें की इनके साथ और मैंने कहा कि अगर तुम हिंदुस्तान का उस वक्त सावरकर का और गुरुवाकर के कॉन्सेप्ट को मान लिया होता और अगर ये हिंदू स्टेट बनता जैसे वो पाकिस्तान मुस्लिम स्टेट बना, तो क्या कश्मीर तुम्हारे पास होता? क्या शेख अब्दुल्ला तुम्हारे साथ आते? वो सेकुलर हिंदुस्तान में आए थे और 32% मुसलमानों ने जिन्ना को वोट नहीं दिया था। और अगर ये हिंदू स्टेट डिक्लेयर हो गई होती और नेहरू और गांधी ने हिंदू स्टेट डिक्लेयर कर दी होती, तो यकीन कीजिए पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बना होता। और अगर ये हिंदू स्टेट डिक्लेयर कर दी होती उस वक्त, तो पंजाब में खालिस्तान कब का बन गया होता। लेकिन इन कम अक्लों की समझ में ये बात आज भी नहीं आती। जिस माहौल में हम आज जिंदा हैं वो तात्सुब नहीं है, एहसास से कमतरी में झुलसी हुई लाशें हैं जिनको डर लगता है लाल किले की बुलंदी से, कुतुब मीनार की मीनारों से उनको खौफ आता है, उनको मुगल सराय से नाम बदलने से उनको दिल को सुकून मिलता है। एक ऐसा माहौल खड़ा किया है। और जिस मुल्क में सेकुलरिज्म नहीं है वहां डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती। आप अंदाजा कीजिए, त्रिपाठी साहब ने बहुत तफसील से बताया किसानों का जो आंदोलन हो रहा है, किसान सड़कों पर है, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? वो एक जहर बोल रही है। उसने एक नई तरकीब शुरू की है। वो कहते यह है कि महाराणा प्रताप ने अकबर को चने हरा दिया, हम बहुत प्राउड हैं। एहसास से कमतरी जो है उनकी, वो कहती है अकबर जो है वो तो हार चुका था उनसे। अब एक नया तमाशा आपने सुना होगा, शायद आपको नहीं मालूम है। चंद दिन पहले छोटी छोटी जो जातें हैं जो बैकवर्ड कहलाती हैं, उन बैकवर्ड को भी ये कहा गया कि तुम्हारे भी आइकॉन थे, और वो आइकॉन वो थे जिन्होंने मुसलमानों को मारा था। बहराइच एक कस्बा है, शहर है यूपी में, वहां एक बड़ी तादाद राजभर कौम की रहती है। राजभर ये बैकवर्ड कम्युनिटी है। अब उन्होंने कहा कि भाई एक राजा सुहेल देव थे जिन्होंने सालार जंग को मारा था, तुम्हारा जो लीडर है उसने मुसलमानों की पिटाई करी थी, तो यू शुड हैव ए प्राउड। इसी तरह से अवध में एक कम्युनिटी कहलाती है, वो पासी कहलाते हैं, वो शेड्यूल कास्ट है।
उनका एक बलदेव पासी एक पहलवान निकाल दिया उन्होंने, उनका ये भी राजा था और ये मुसलमान अवध के नवाबों को मारता था। तुम क्यों खामोश हो? इसी तरह से यहाँ वेस्टर्न यूपी में गोकुल जाट एक राजा था जो मुसलमानों को मारता था। आप तसव्वुर कीजिए कि किस रविश पे जा रहे हैं, ये क्या सोचना चाहते हैं। ये इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की भी है। नेहरू एक ऐसा विजनरी आदमी था जिसने लड़ाई लड़ी बराबर, उसके बाद उसका साथ देने वाले लोग नहीं रहे। अफसोस ये रहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने वजूद के लिए लड़ती हैं, उनको मुल्क की परवाह नहीं रही। इस मुल्क में कुछ भी हो जाए, नौकरियां खत्म हो जाए, मजदूर मर जाए, कारोबार खत्म हो जाए, लेकिन मियाँ को ठीक करना है। जब ये तस्वुर बन जाए और वोट इस पे मिलने लगे तो आप बताइए कि ये वो मुल्क कैसे कहें हम, किससे कहें कि हमको गर्व है। मुझसे लोग कहते हैं कि गर्व से कहो, क्या कहें गर्व से? जिस मुल्क में इंसान को इंसान मारकर और जश्न मनाए हम कह दें कि हमको अपने मुल्क पे नाज है, नहीं है, हम शर्मिंदा हैं। हम शर्मिंदा हैं जिस मुल्क में किसानों पर गोलियां चले और मारे जाएं और कहें कि पुलिस को मजलूमों की सिसकियां न सुनाई पड़े। उस पे हम कैसे कह दें कि हमको बड़ा फख्र है। हमारा तसव्वुर 75 साल के बाद हमसे पूछे कोई कि हम कहाँ खड़े हैं, अफसोस ये है कि हम उस मुल्क में मरना नहीं चाहते जिसका तसव्वुर सरवारकर और गुलकारकर ने देखा था। परसों मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने सरवारकर की और गुलकारकर की जश्न मनाया। इस मुल्क में गोडसे के मंदिर बनते हैं। हमसे पूछा जाता है कि तुम देशभक्त हो या देशप्रेमी हो। दुनिया खामोश है, इसलिए कि दुनिया अब उसूलों पे नहीं चलती है, दुनिया अब बाजार पे चलती है। अब मुल्क अपनी आइडियोलॉजी पे नहीं चलते। इस समाज ने ऐसी करवट ली है जहां अखलाकियात खत्म हो गई हैं, जहां कोई शख्स कोई उसूल का पाबंद नहीं है। जेब में रकम कैसे आए, पैसा कमाने का जुनून खून की रगों में दौड़ गया है। आप अंदाजा नहीं कर सकते इस मुल्क में कि जहां पर अदालतें हुकूमत से पूछ के फैसले करती हैं और हमसे कहा जाता है कि गर्व से कहो। हम हंसते थे पाकिस्तान की जुडिशरी पर, हम मजाक उड़ाते थे उनका। आप अंदाजा कीजिए, अभी पिछले 3 साल पहले, 1 साल पहले 3 बिल आए एनआरसी का, यानी मजहब के नाम पर कहा यह जा रहा है कि ये सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, आईन हमारा सब कुछ है। कहा गया कि अगर तुम फला मजहब के हो तो तुम वेलकम हो, और अगर तुम फला मजहब के हो तो तुम इस मुल्क के शहरी नहीं हो। वो बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक, जो पार्लियामेंट से और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है, आवाज सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंची। फिर कहा गया कि 370 हम खत्म करेंगे। आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स मालूम है कि जब ये पार्टीशन हुआ था तो ये तय हुआ था कि जहां मुसलमान अक्सरियत में है वो पाकिस्तान में जाएगा, और जहां हिंदू अक्सरियत में है 3 स्टेट, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये एक ऐसी स्टेट थी, जम्मू कश्मीर में अक्सरियत मुसलमानों की थी और हाकिम गैर मुस्लिम था।
हाकिम महाराजा हरि सिंह, उन्होंने अपने को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, और शेख अब्दुल्ला और उनकी नेशनल पार्टी ने, कॉन्फ्रेंस ने 28 दिन तक पाकिस्तानियों से लड़ाई लड़के वैली को बचाया था। 14 साल जेल में गुजारे। आप बताइए, मैंने कहा था शेख अब्दुल्ला साहब से, इत्तेफाक से मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, मैं उनको बहुत मानता था, उनके बेटे भी मेरे दोस्त हैं, चंद दिन पहले आए थे यहाँ, मैं मिलने गया था, और मैंने कहा कि फारूक भाई, जब आपका ये आलम हो गया तो हम कहाँ जाएं? डेमोक्रेसी के सवाल ये है, पार्लियामेंट में नेहरू हमेशा पार्लियामेंट में आते थे। आज का प्राइम मिनिस्टर विजिटर के हैसियत से पहले दिन जाता है और आखिरी दिन जाता है, बगैर किसी तकल्लुफ के। होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर जितना चाहे पार्लियामेंट को बोलते हैं, जबकि इसका प्रोविजन मौजूद है। आपको याद होगा जिस वक्त 370 लगाया गया, फारूक साहब जेल में बंद थे, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर कह रहा है कि हमने बिल्कुल बंद नहीं किया, वो आना चाहे तो आए। देयर वाज नो प्रिविलेज, कोई मोशन नहीं मूव हुआ। ऐसे में जहां मीडिया सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की बात करे, तो आपको मालूम है कि जब कलम बिक जाता है तो जमीन पे बोझ होता है। कलम वो कुव्वत है जो समंदरों के रुख बदल देती है, हवाओं के रुख बदल देती है। यहाँ तो वो भी नहीं रहा। यहाँ तो पुलिस, यहाँ की इंतजामिया एक नफरत पे उसके भंडर भरी हुई है। एक नौजवान बच्चे, इनको हिंदुस्तान का अंदाजा ही नहीं है। नई नई चीजें तैयार की जा रही हैं। आप सोचिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी ये हुआ। डेमोक्रेसी को ऐसे वैसे करके नहीं तोड़ा है। डेमोक्रेसी के बहुत से वाकयात हैं, ये उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। मुझे याद है 67 में कमला, हमारे सीबी त्रिपाठी यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, चौधरी चरण सिंह उनके होम मिनिस्टर थे, और उन्होंने एक दिन हाउस में खड़े होकर कह दिया कि मैं 70 IMLA लेकर पार्टी छोड़ रहा हूं, इसलिए कि आई हैव नो फेथ ऑन माय चीफ मिनिस्टर। Immediately CB Gupta resigned. The people said, why you are resigning? You are still in majority. He said, no, if my home minister doesn't have confidence on me, I'm going to resign. Resign किया, वो हार गए। ये कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए लिखा गया था। अब आप देखिए, इलेक्शन ऐसे नहीं लड़ा जाता। एक तो दौलत से, मीडिया से, और जीतने या हारने के बाद खरीदारी करके। ये इसको कैसे कह दें कि ये दुनिया की बहुत बड़ी वाइब्रेंट एक डेमोक्रेसी है, जहां जानवरों की तरह MLA और MP बिकते हों, जहां इलेक्टेड गवर्नमेंट मिनटों में गिरा दी जाती हो। ये ऐसी शक्लें हैं जिसका तस्वुर आप वहां बैठ के तो कर सकते हैं, लेकिन उसका अंदाजा हम लोग कर रहे हैं। हम रोज अपनी हिंदुस्तान की रूह को मरते हुए देख रहे हैं। हम रोज हिंदुस्तान में गांधी को कत्ल करते हैं। हमने कत्ल एक दिन में नहीं किया है, किस्तों में कर रहे हैं। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। हर शख्स अपनी पार्टी के वजूद के लिए लड़ रहा है। ऐसी शक्ल में आप लोग जो फिक्र करते हैं, ये हौसला हमको देते हैं, हमें जीने की आरज़ू देते हैं। हमें दिल चाहता है कि हम कुछ जिंदगी और जी लें, शायद ये मुल्क बच जाए। आप अंदाजा कीजिए, ये मुल्क जहां खड़ा है, उस मुल्क में अब हालत ये है कि कहते हैं कि साहब एक प्रोपेगेंडा है कि साहब हिंदू लड़कियों को मुसलमान लेके भाग रहा है। लव जिहाद शुरू हो गया। हकीकत ये है कि इनको ये एहसास नहीं है हाकिमों को, वो क्या जाने मोहब्बत क्या चीज होती है। कोई बीवी को छोड़ के भाग गया हुकूमत करने, कोई अपने खानदान को छोड़ के भाग गया हुकूमत करने, यहाँ तक कि बाप मर गया उसकी क्रियाकर्म करने के लिए भी नहीं गए।
उन्हें क्या मालूम है कि मोहब्बत क्या चीज होती है। ये नफरत से झुलसी हुई आत्माएं हैं, इनको मोहब्बत समझ में नहीं आती। इन्हें कौन समझाए कि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। कौन समझाए इनको। लेकिन आप तसव्वुर कीजिए, हम ऐसे हिंदुस्तान में खड़े हैं। अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या हो। यह सवाल बहुत बड़ा है। कहीं कहीं उम्मीद की किरण भी जागती है। आपको याद होगा कि जिस वक्त डाउन किया गया था, गरीब सड़कों पर निकल पड़ा था, उसको अपनी मंजिल का पता नहीं था। कोई पटरी पे कट रहा था रेल की, कोई सड़कों पे ट्रकों से और व्हीकल से मर रहा था। किसी के पास खाने को नहीं था, लेकिन यहाँ की आवाम ने उनको गांव गांव सड़कों सड़कों अपने हाथों से पानी पिलाया, खाना खिलाया। न ये पूछा कि तुम्हारा मजहब क्या है और तुम्हारी बिरादरी क्या है। ये पहली रोशनी थी जो दिखाई पड़ी थी, ये पहली रोशनी थी। आज वही कुछ किसान के आंदोलन में दिख रहा है। शायद ये एक दूसरी मंजिल है जहां मैंने देखा कि एक खालसा सरदार बैठा है, उसके बगल में एक जाट अपना हुक्का पी रहा है, और एक जोश है, एक उम्मीद है कि हम इस मुल्क को बचाएंगे। अगर इस तरह के मूवमेंट होते रहे तो उम्मीद की किरण बकती है। और उम्मीद इसलिए भी है कि मेरे दोस्त जिन्होंने अभी आपसे खिताब किया, अभी ऐसे लोग बहुत से कायम हैं। इसलिए नाउमीदी नहीं है, लेकिन दिल का दर्द है जो मैंने आपसे बयान किया है। आज प्रोफेसर त्रिपाठी, आज मुसलमानों को यह चाहिए कि अब अपने हिंदू भाइयों की मदद करें। इन्होंने हमको 70 साल तक हमारी मदद करी, ये खुद अब खतरे में पड़ गए। अब इनके ऊपर इल्जामात आने लगे हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ने लगी है। नौजवान बच्चियां पकड़ी जा रही हैं, जेलों में भेजा जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूं, हालांकि अगर ये भी कामयाब ना हुआ तो मैंने बहुत पहले एक बात कही थी, मेरा बहुत मजाक उड़ा था, लेकिन शायद वो वक्त भी शायद आना पड़ेगा जब मैंने कहा था मुसलमानों से कि अगर सेकुलर पार्टियां मुत्तहिद नहीं होती हैं तो कम से कम एक इलेक्शन के लिए टोटल बाइकाट कर दो। अब कह दो ना हम इलेक्शन लड़ेंगे, ना हम वोट देंगे, ना लड़ने जाएंगे। इस मुल्क में लड़ाई रोजी और रोटी की होनी चाहिए, न कि हिंदू और मुसलमान की। ये वो चीजें हैं जो मैं समझता हूं शायद वो स्टेज नहीं आएगा, लेकिन समझ ये नहीं आता कि जब ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी और पुलिस जालिम बन जाए, खुद आतंकवादी बन जाए, तो कैसे लड़ा जाए। नौजवान बच्चा, उसको आज नौकरी की फिक्र है, उसको तारीख मालूम नहीं है, वो ये जानता नहीं है कि ये हिंदुस्तान द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया था क्या, और ये हिंदुस्तान था बना किस लिए था। अगर हम यही करते रहे हम, अब आप देखिए कि आज किसानों के मसले को डाइवर्ट कैसे किया जा रहा है। यानी उससे लड़ाई, किसान से बात नहीं हो रही है, अब हो रहा है कि राम के मंदिर बनाने के लिए चंदा दीजिए, और सैकड़ों की तादाद में निकलते हैं और प्रोगेटिव नारे लगाते हैं कि किसी तरह से माहौल किसानों से हटके फिर वहां जाए। और अगर उनसे पूछा जाए कि तुमने आज से 30 साल पहले जो चंदा जमा किया था वो कहाँ गया, तो आप देशद्रोही हो जाएंगे, आपके कत्ल कर दिए जाएंगे। तो ये वो सब करते रहेंगे, लेकिन एक वक्त जरूर आएगा, मैं समझता हूं कि ये जमीन ऐसी जमीन है जिसको, जहां हमारे हिंदू भाइयों ने गंगा और जमुना में स्नान करके अपने को पाक किया था,
हमने भी उसी पानी में वजू करके सजदे किए थे। इस जमीन को हमने पाया था। हम समझते हैं कि उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, लेकिन हालात यकीनी तौर पे बहुत अच्छे नहीं हैं। ये तसव्वुर कोई करना बंद कर दे, और अगर कोई शख्स ये समझता है कि हिंदुस्तान ऐसे चल के कहीं तरक्की पे जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब क़यादत की तरफ अगर आप निगाह डालें तो अब स्टेट्समैन नहीं है, अब लोग एक्टर हैं। एक्टिंग करके हुकूमत को बेवकूफ बनाते हैं और जनता को बनाते हैं। मैं बहुत आपका मशकूर हूं, और मैंने कुछ सख्त बातें की हैं, लेकिन ये मेरे दिल की आवाज है। और मैं रोज ये सोचता हूं कि शायद कोई ऐसा मसीहा पैदा हो जाए, कोई ऐसा आज शख्स पैदा हो जाए जो झूठ को झूठ कहने की और जालिम को जालिम कहने की हिम्मत रखता हो। बहुत बहुत शुक्रिया।